respected principal, vice principal, and the teachers of Oasis School present here. I welcome you all to the CBSE in-house training on the topic Business Studies and Marketing, which will be taken by our senior teacher, Mr. Sadil Hassan. What is business studies? Business studies is one of the most intentional studied subjects in the world due to how broad the subject is. As a broad subject in social sciences, business studies open the study field to a focus of specialities such as accountancy, finance, organization, human resources management, and marketing. Marketing refers to any actions a company takes to attract an audience to the company's product or services through high-quality messaging. Marketing aims to deliver stand-alone value for prospects and consumers through content with the long-term goal of demonstrating product value, strengthening brand loyalty, and ultimately increasing sales. The purpose of marketing is to research and analyze your customers all the time, conduct focus groups, send out surveys, study online shopping habits, and ask one underlying question: where, when, and how does our consumer want to communicate with our business? When you are a seasoned marketer looking to refresh your definitions, or a beginner looking to understand what marketing is in the first place, this training will help you cover all the points. Marketing is the process of getting people interested in company's product or service. To throw more light on the topic, I now call upon Mr. Sadil Hassan to take further training. Please, sir. Honorable Principal Sir, Dr. S. Arun, respected Vice Principal Sir, Mr. Imtiaz Alam, and my dear teachers. I am feeling very excited to take CBSE online training. And the topic is very interesting and it is related to business studies. The topic is marketing. आज के सेशन में, आज के ऑनलाइन इन हाउस ट्रेनिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन होगा और वो टॉपिक बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, मार्केटिंग. मार्केटिंग. सपोज आई एम अ शॉपकीपर. मेरे शॉप में एक कस्टमर आता है और मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ. इज इट मार्केटिंग? नो, इट इज नॉट मार्केटिंग. It is a simple process of selling. Don't confuse with marketing and selling. Selling is a process of sold the goods and get profit. But marketing refers to customer satisfaction, customer demands, customer needs, and satisfy the customer and get profit. जनरली हम लोग के माइंड में ये रहता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो टेक्निक्स का यूज होता है उसको मार्केटिंग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं. मार्केटिंग का मीनिंग है कस्टमर के माइंड में उस ब्रांड के, उस प्रोडक्ट को सेल कर देना. इन द सेंस, जब भी फ्यूचर में कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हो, इनको उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करें, दूसरे ब्रांड के बारे में सोचे ही नहीं. इट इज कॉल्ड मार्केटिंग. एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड सर. वेरी लेटेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट. सपोज मुझे मोबाइल परचेज करना है, तो अब मैं सोचने लगूंगा कौन सा ब्रांड सही है, कौन सा ब्रांड मेरे लिए अच्छा है जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. तो अब मैं क्या करूंगा, सर्च करना स्टार्ट करूंगा कि कौन से मोबाइल को परचेज. अब मैं मोबाइल वेबसाइट में विजिट किया,
इसमें मुझे so many types of mobiles मिले। मैं क्या किया, सभी मोबाइल के रिव्यू को चेक किया। उसके बाद मैं एनालाइज किया कि कौन सा मोबाइल मुझे परचेज करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने मोबाइल जब परचेज किया, इट इज अ सेलिंग। सिर्फ मोबाइल को परचेज करना सेलिंग है, लेकिन उसके बाद मैंने जो रिसर्च किया, मैं जो वेबसाइट विजिट किया, मैं जो ऑनलाइन एप्स में गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को एक और ढंग से समझते, मैंने मोबाइल परचेज किया और मोबाइल मेरा खराब हो, इसी रीजन से कुछ टेक्निकल इशू मोबाइल में आ। अब मैं क्या करूंगा, अपने फोन से तुरंत कस्टमर सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव को कॉल करूंगा और वहां से मुझे तुरंत रिप्लाई आएगा, हाँ सर आपका जो प्रॉब्लम है मैं तुरंत ठीक करता हूँ। वहां से एग्जीक्यूटिव मेरे घर आएंगे और मोबाइल मेरे को देखेंगे, मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, या मैं अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर ले जाऊँ और वहां मेरे मोबाइल में जितना भी टाइप का प्रॉब्लम है वो सारे को दूर किया। तो सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ मोबाइल को सेल करना, बट मार्केटिंग का मीन्स ये भी होता है कि सेल करने के बाद जो फैसिलिटी है वो भी कस्टमर को प्रोवाइड। इन शॉर्ट, कस्टमर की जितनी भी नीड्स है, जितनी भी वांट्स है, उसको फुलफिल करना, इट इज वर्ड मार्केटिंग। नेक्स्ट टाइम सर, अगर मैं आपसे कहूं हु इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको पता है हु इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, लेकिन मुझे ये नहीं जानना कि हु इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज वी आर टीचर्स और हमें मार्केटिंग में रहना है, अपने फील्ड में रहना है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हु इज द किंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के किंग कौन है? जैसे बॉलीवुड के किंग आपको पता है कौन है? वैसे अच्छा, लॉट्स ऑफ टीचर्स भी बोल रहे शाहरुख खान, राइट आंसर शाहरुख खान ही है। तो आपको ये समझना है कि मार्केटिंग के जो किंग है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए किया जाए। अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद है तो ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, और अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आपका बिक ही नहीं सकता। आप लाख उस अपना बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो, रिजनेबल प्राइस के साथ लॉन्च करो, लो प्राइस में लॉन्च करो, फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिके। देन द किंग ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर। नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फोटो पे यहाँ पर एक केस किया है। और मार्केटिंग को समझने के लिए दो सेंस को हम लोग फॉलो करें, एक ट्रेडिशनल सेंस, एक मॉडर्न सेंस। तो दो एग्जांपल जो है कोल्डिंग कंपनी का एग्जांपल लिया है, एक है लिम्का और एक है लिम्का। आप बॉटल में चेंजेस देख पा रहे हो। अगर आपको और अच्छे चेंजेस जानना है तो मैं इस बॉटल में थोड़ा ट्रेडिशनल को थोड़ा और पीछे और बैक और पास्ट में जाऊं। तो अगर पहले हमको कोल्डिंग पीना होता था तो हम लोग को एक शीशा का बॉटल हम लोग परचेज करते थे, जो काफी भारी भी था। और आपको याद होगा, आज से आप 10 साल 15 साल पहले जाओगे कि वो बॉटल को कैरी करना पड़ता, ठीक है, उसको हम ड्रिंक कर लें, उसके बाद वो बॉटल को फेंक नहीं सकते, वो जाकर के वापस हमको शॉप पे जाकर के रिटर्न करना पड़ता था और उसके बदले में कुछ कैश हमको मिलता। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया। उसके बाद ये प्लास्टिक का बॉटल है, और ये प्लास्टिक का बॉटल आप देखोगे ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो ये जब बॉटल लॉन्च हुआ था तो सिंपल सा कस्टमर, ये जो मार्केट, इसके लिए मार्केटिंग करने का पॉलिसी था सिर्फ सेल करना, और सेलिंग में इन द सेंस कि सेल द प्रोडक्ट, sell the maximum product and sell the product and get profit। बस माइंड में यही था, प्रोडक्ट को सेल करो, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करो, प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट करो। ये हमारा ट्रेडिशनल सेल्स है। लेकिन आज के डेट में प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग में सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कस्टमर के नीड्स को समझो, कस्टमर के वांट्स क्या चाहते हैं वो समझना,
satisfied the customer, and last satisfied the customer and get profit. आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो सबसे पहले तो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना, कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाहते हैं वो आपको देखना होगा। अगर आप देखोगे तो छोटा सा चेंजेस किया गया, ये कस्टमर के लिए चेंज किया गया। पहले का बॉटल कुछ इस डिजाइन का था, इसको कैरी करने में काफी प्रॉब्लम होगा। या तो आप शीशा का बॉटल जो 750 ml का था, या फिर 1 लीटर लेना होगा या 2 लीटर लेना होगा। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको 500 ml का बॉटल, 750 ml का बॉटल और उससे छोटा छोटा बॉटल में आपको इसको लोग टेट्रा पैक बोलते हैं वो भी। और अगर आप 1 लीटर का बॉटल देते हो तो थोड़ा सा शेप में चेंज किया है। अगर आप कैरी करने में देखोगे तो इस बॉटल को कैरी करने से इजी होगा इस बॉटल को आप इजी फॉर्म से कैरी करवाओ। और आज के डेट में सिर्फ एक ही फ्लेवर नहीं, लॉट्स ऑफ फ्लेवर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फ्लेवर चेंज हो गया। अगर आप ऐड देखोगे, अगर आप YouTube में जाके सर्च करोगे कि जो फर्स्ट ऐड लिंका का आया था उसमें आप देखोगे 2 कपल है, दोनों कहीं जॉब करके निकल रहे हैं और काफी थकावट फील है। अब उसके लिए उसको बस घूमना है और माइंड फ्रेश करना है, तो ये एनर्जी ड्रिंक के रूप में वहाँ पर एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा है, बस दिखाया गया था सिंपल सा, वो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहता है। वो ये ड्रिंक को ड्रिंक किए और वो आप अच्छा फील किए और ये ऐड करते हो। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, आपको बताता हूँ कि इसका ऐड कौन करता है। ये जो उनका आप देख पा रहे हो, इसका ऐड कौन करता है आज के डेट में? तो ट्राई करो, देख पा रहे बहुत सारे टीचर्स फेस एंड कर ट्राई कोई। चलिए मैं क्लू देता हूँ, ये ऐड करने वाले कोई एन से स्टार्ट होता है। नीरज चोपड़ा, वेरी गुड, आपने अच्छा नाम लिया। आज के डेट में जो ऐड करने वाला है वो नीरज चोपड़ा है और वो इसे एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज करते हैं। ये जो मार्केटिंग किया जा रहा है वो एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज किया। और आज का जो फ्लेवर है वो ग्लूकोज फ्लेवर में भी इंक्लूड किया गया है मार्केट में, और बहुत सारे ऑरेंज फ्लेवर और भी बहुत सारा फ्लेवर है जो मार्केट में लॉन्च किया है। ये इसका मार्केटिंग है। नीरज चोपड़ा को आप जान पा, बहुत ही फेमस पर्सन है और वो आज के डेट में इस लिम्का का ऐड कर। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हमने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ सेल फोन। अब ये आप समझ पा रहे हो, ये ट्रेडिशनल, ये बहुत ओल्ड वर्जन और आज के डेट में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फोन का मार्केटिंग हो। मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप में से एक टीचर यहाँ आए और आप बताएं कि मार्केटिंग जो पहले का था और जो आज का मार्केटिंग, उसमें क्या चेंजेस आए। देन मैं कॉल सीनियर पोस्ट टीचर राहुल राज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड आप अपनी बातों को शेयर करें कि पहले के जो मोबाइल थे और आज के जो मोबाइल है उसमें क्या बेसिक चेंजेस है और आप क्या चेंजेस हो रहे हैं। Thank you, Sanu sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. So I am here to explain कि ये दो मोबाइल जो है इनमें डिफरेंसेस क्या है। As you all know, I'm the teacher of English, and I will compare this with my subject. How I will compare? Because as we can see, this is the transformation. This is the transformation. मुझे याद है कि जब हम कुछ साल पहले थे, उस समय जो हम मोबाइल यूज करते थे ये नोकिया का इतना मोटा मोटा, अभी हम लोग बोले अगर किसी को इससे फेंक के मार दे सिर फट जाएगा। ऑब्वियस इतना मोटा होता था, वजनदार, किसी को ऐसे मारे तो सिर फटेगा कंफर्म। उस मोबाइल का हम यूज करते हैं और आप आज का जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इसमें अच्छे बड़े स्क्रीन, एचडी स्क्रीन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला मैं इसको रिलेट करूंगा क्या
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द डिजायर। अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का डिजायर हो, कुछ इच्छा हो, तभी हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। There is a poem in class 10 that is Amanda. I hope कि आप टीचर्स जानते हो, पढ़े हो। अमेंडा एक पोएम था, बड़ा ही अच्छा पोएम है, जिसमें उसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है या पोएम स्टार्ट होता है तो एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट होता है, और वो बच्चों से पहला क्वेश्चन करता है कि बच्चे, आप सभी का जो डिजायर है, जो डिजायर है आपका, वो आप एक्सप्लेन करें, और किस डिजायर को आप सप्रेस कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करें। तो मैं भी कक्षा में पढ़ाता हूं अभी, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि टेल मी द डिजायर, आप अपना डिजायर बताएं और किस डिजायर को आप सप्रेस कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं डिजायर बताते हैं, यस आई हैव दिस डिजायर, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ सर। और बहुत बच्चे होते हैं बोलते हैं कि डिजायर, मेरा कोई डिजायर नहीं है, दे सिंपली से कि आई डोंट हैव एनी डिजायर। लेकिन मैं उनको समझाता हूं, वी मस्ट हैव सम डिजायर इन आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की इच्छाएं होंगी, तभी हम अपने आप में परिवर्तन कर पाएंगे। अगर इच्छाएं नहीं हुई तो हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इच्छाएं हैं तभी हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जगेगा किसी भी चीज को करने का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि पीपल हैव डिजायर। पहले का जो मोबाइल था वो सिर्फ क्या था, ऑडियो कॉलिंग, सिर्फ हम बातों को बोल सकते थे और सुन सकते थे। और आज का जो मोबाइल है, आप देख सकते हैं इस तरह का मोबाइल का यूज करके हम वीडियो कॉलिंग, सामने वाले लोग को हम देख सकते हैं बाय वीडियो कॉलिंग। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर। जिस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डिजायर की वजह से हो पा रहा है। And if I relate this topic to the marketing, तो मार्केटिंग भी यही, as sir said in previous slides, that who is the king of the marketing? और वो मार्केटिंग का किंग कौन है? It is the customers. So in marketing, companies have to fulfill the desires of the customers. जो उनकी इच्छाएं हैं, क्या वो चाह रहे हैं अपने लाइफ, किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं, तभी हम वो परिवर्तन करते हैं और उसको मार्केट में हम लेके आते हैं। सो इसको हम अगर देखें तो पहले के मोबाइल में सिर्फ ऑडियो कॉलिंग होता था। अभी जो लेटेस्ट मोबाइल है उसमें हम अनेक फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें वैरायटीज ऑफ वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, वी कैन इजीली कनेक्ट टू द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से इजीली भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहले का समय देखें कि जो कक्षा में मित्र होते थे, अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं मिल पाए तो भूल भी जाते थे। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इस तरह का मोबाइल हमारे सामने अवेलेबल है, जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने दोस्तों से इजी वे में कनेक्ट कर पाते हैं, हम इजीली उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। So this is the importance
और इसीलिए मैं बोलूंगा कि इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, एक डिजायर का, और उसी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए कोई भी कंपनी जो है वो मार्केटिंग करता है और लोगों का जो डिजायर्स को फुलफिल करता है। तो यही दो डिफरेंस है इन दोनों में, और एज वी नो कि इन दोनों में और बहुत सारे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, बट आई विल कंक्लूड up to here and thank you, thanks a lot sir. थैंक यू सो मच सर। आपने डिजायर बोला, डिजायर एकदम सही है। कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स। अगर तो मार्केटिंग से ऐड करूं, बिजनेस स्टडीज के टॉपिक से रिलेट करके करूं, तो मैं सर के जो टॉपिक को सर ने बार बार डिजायर 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 बोला, मैं उसको बोलूंगा कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स। कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर वांट्स। कस्टमर क्या जरूरत है कस्टमर की, और कस्टमर चाहते क्या। सर ने अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है यहाँ पर। कस्टमर की नीड्स थी वीडियो कॉलिंग, यहाँ पॉसिबल नहीं था। कस्टमर की नीड्स थी सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, यहाँ वो नहीं हो पा रहा था। फिर कंपनी ने सोचा कस्टमर की नीड्स क्या है। प्रोडक्ट तो ये ऑलरेडी सेल हो रहा था, ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा था, मार्केटिंग का भी प्रोसेस कुछ नहीं, बट मार्केटिंग और इन्हेंस कस्टमर की जरूरतें क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, डिजायर। तो आपको ये समझना हो कस्टमर इज ए किंग ऑफ मार्केटिंग। ये स्लाइड भी था, सर ने अपने बातों में उनको ऐड भी किया कि कस्टमर किंग है। कस्टमर जो चाहेगा आपको वैसा करना होगा, और अभी इससे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और इन फ्यूचर और हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड सर। ये स्लाइड इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रीजन क्या है कि जब हम लोग छोटे थे तो टेलीविजन का यूज हर घर में होता है, आज भी टेलीविजन का यूज होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर मार्केटिंग की एक मार्केटिंग प्रोसीजर को हम लोग ऑलरेडी पिछले स्लाइड में समझे, जो फोन से रिलेटेड वो था फोन। आज ये नेक्स्ट जो स्लाइड है ये टेलीविजन से रिलेटेड है। ये स्लाइड को भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा आप में से एक टीचर आए, प्लीज रेज योर हैंड एंड बताएं आप में से कौन आना चाहते। 7-8 टीचर आपने रेज हैंड कर दिया, तो सबका तो नहीं, बट एक टीचर को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे सीनियर मोस्ट टीचर मोहित सर। प्लीज सर आप अपने बातों को रखें। सीआरटी टीवी एंड एलईडी टीवी में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्लीज। थैंक यू साहब सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज के करंट लाइफ में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में या कम्युनिकेशन स्किल के मामले में दुनिया को देखते हैं, तो पहले के कंपेयर में आज दुनिया जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफी डेवलप कर चुका है। चाहे वो कंप्यूटर डिवाइस हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो अदर डिवाइसेस। इसमें जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं टेलीविजन का, जैसे कि सर ने ये क्वेश्चन राइज किया है कि पहले के टेलीविजन और आज के टेलीविजन में क्या डिफरेंसेस है। तो जहां तक मुझे याद है, जो पहले का टीवी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो हम अपने स्टूडेंट लाइफ में देखे हैं, फेस किए हैं, वॉच किए हैं, जिसको हम लोग सीआरटी टीवी बोलते हैं। सीआरटी टीवी यानी एंटीना वाला टीवी। तो वो जो पुराना वाला जो टीवी या टेलीविजन जो एंटीना वाला टीवी होता था, आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले तो वो उसको हम लोग जहां पे रखते थे वो स्पेसेस भी ज्यादा कवर करता था, बहुत ज्यादा स्पेसेस लेता था। दूसरा चीज जो है कि
उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कंज्यूम करने का पावर ज्यादा होता था। उसके लिए हम लोगों को अलग सेटअप के लिए स्टेबलाइजर रखना होता था, ये हमको याद है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें पुराना वाला टीवी में कि जो इसका एंटीना का डायरेक्शन होता था उसको बिल्कुल सही मोड पे रखना होता था, बिल्कुल सही पोजीशन में रखना होता था। हमको एक छोटा सा जो है फनी मोमेंट याद आ रहा है अपने लाइफ में। जो हमारे क्लासमेट था, तो हमारे कोर्स में ही में था क्लासमेट, तो उस टाइम पे एक एपिसोड आता था यू, उसको देखने के लिए हम लोग पूरा एक वीक जो है पूरा एक सप्ताह वेट करते थे। और जिस दिन वो आता था एपिसोड, और जैसे ही हम लोग जाते थे देखने के लिए, तो शायद ये तेज हवा की वजह से या फिर किसी जो है और डिस्टरबेंस की वजह से जो एंटीना का डायरेक्शन है वो मूव कर जाता था। और उस टाइम क्या होता था, हम लोग जो एक सप्ताह का जो टाइमिंग वेट करते थे वो बेकार हो जाता था और अपने आप में जो इरिटेशन फील होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि देखिए उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि सारे लोगों के यहाँ टेलीविजन नहीं होता था, तो हम लोग बहुत ज्यादा वेट करते थे जो फ्रेंड होता था या पड़ोस होता उसके यहाँ जाके जो है हम बात करेंगे, तो वो सारे लोगों को एंट्री नहीं देता था, तो हम लोग बाहर से उसको जो परेशान कर दे, एंटीना का डायरेक्शन ही मूव कर देते थे। तो ये सारा जो है प्रॉब्लम जो है हम लोग पहले के टीवी में फेस किए हैं कि किस तरह से जो है एंटीना वाला जो टेलीविजन होता था उसको एक सही डायरेक्शन पे रखना होता था। लेकिन आज का जो करंट लाइफ है, आज का जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें हम लोग देखेंगे ये टेलीविजन के फील्ड में, ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में जो दुनिया है वो काफी डेवलप कर चुका है और भी इसमें जो है काम हो रहा है और ये और ग्रो कर रहा है इस फील्ड में। जैसे कि आज जो है टेलीविजन में हम लोग देखेंगे ये एलईडी, जिसको हम लोग स्मार्ट टेलीविजन बोलते हैं। ये स्मार्ट टेलीविजन आ गया है, एंड्रॉइड टेलीविजन आ गया है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली उस चीज को, आज की जो टेलीविजन है हम लोग नेट से डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करके हर चीज को देख सकते हैं। उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जो है टाइम का हम लोग वेट नहीं करते हैं, ठीक है। आज जो है हर पर्सन अपने लाइफ में इतना बिजी है कि उसको उस टाइम पे वेट करके देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर के बेटा हम लोग ये भी देखते हैं कि काफी जो है स्पेंड हम लोगों को स्कूल में देना होता है, लेकिन हम लोग जब फ्री टाइम होते हैं तो पूरे वर्ल्ड का अगर न्यूज हम लोग देखना चाहे तो किसी भी टाइम नेट से कनेक्ट करके उस टेलीविजन में हम लोग देख सकते हैं। यानी सिंपल से ये कह सकते हैं कि आज का जो टेलीविजन है उसमें बहुत सारे ऐप को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सर से जैसा कि क्वेश्चन था कि पहले का जो है टेलीविजन और आज का टीवी में क्या डिफरेंसेस है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा ये आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Is a repeat. Customer needs, customer wants. सर ने तो वही कहा, कस्टमर की क्या जरूरतें हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं, बस वही। सर ने तो बचपना याद दिला दिया, वो अल्टीना वाला कॉन्सर्ट, वो रिकैप वाला कॉन्सर्ट। मुझे भी एक छोटा सा मूवमेंट याद आ गया सर। पहले शक्तिमान आया था, जब मैं छोटा था तो मैं शक्तिमान देखा, उसका शो रात में आता, टाइम तो याद नहीं है, रात में। और उसका एक रिकैप आता था मॉर्निंग में। बस दो ही ऑप्शन है, या तो आप रात में देखो या मॉर्निंग में। लेकिन आज अगर मैं चाहूँ, मुझे अभी शक्तिमान देखना है, और वो भी मुझे अपने मोबाइल फोन में नहीं देखना, मुझे अपने एलईडी टीवी में देखना है, मुझे स्मार्ट टेलीविजन में देखना है। क्या मैं देख सकता हूँ? मैं डाउनलोड करके देख सकता हूँ, ठीक है। पहले का जो टीवी आता था वो मुझे याद आ रहा है, 17 इंच का टीवी। अगर कोई मूवमेंट आ गया या आपके फेवरेट एक्टर है वहां पे मूवी देख रहे हो, तो काफी क्लोज आके हम लोग देखते थे कि वो एक्टर को हम लोग नजदीक से देखते हैं। लेकिन आज के डेट में हम नजदीक नहीं आते, हम अपने टेलीविजन का साइज बड़ा कर देते। 32 इंचेस, 40 इंचेस, 45, 50, 55, 65 और आगे तक भी जा सकता हूँ। मतलब अपने टेलीविजन को मैं, आप सपोज करो अगर ऐसा बना सकते हो अपने को टेलीविजन से कि आपको वो जो फील आएगा कि आप थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हो, तो क्या टेक्नोलॉजी
पहले के जो टीवी सर ने बताया वो एंटीना वाला कॉन्सेप्ट, वो डिश वाला कॉन्सेप्ट, जिसका तार डाल करके वो करंट फील देना। लेकिन आज के डेट में जो टेलीविजन हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी कनेक्टेड होते हैं। एक छोटा सा छतरी हमने डाले ना, वो छतरी नहीं जो पहले डालते थे एंटीना वाला, जो घुमाना है, इसमें कोई घुमाने का प्रॉब्लम नहीं, एक बार लगा दो और कंटिन्यूअस आप देख पाओगे विदाउट एनी ब्लर, कोई भी ह्यूमन का साइन या ब्लर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो हो पाया ये मार्केटिंग से ही होता है। अगर सिर्फ सेलिंग का प्रोसेस होता कि हमको प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये जो टीवी आप सीआरटी देख पा रहे हो, इसी का वैराइटीज बढ़ते रहता, लेटेस्ट चलता रहता। लेकिन जब हमने कस्टमर के नीड्स को समझा, कस्टमर क्या चाहते हैं उनको समझा, फिर हम लोगों ने स्मार्ट टीवी लॉन्च। मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो मार्केटिंग के प्रोसेस को विद द एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में कोशिश करते हैं और उसके बाद मार्केटिंग को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। हम लोग जितने भी मेल टीचर्स यहाँ बैठे होंगे, अगर हम लोग सेकंड वाले फोटो को देखें तो ये क्लियर होगा ये वॉशिंग मशीन है। लेकिन अगर इस फोटो को देखें तो काफी कंफ्यूज है। प्लस जो लेडी टीचर्स यहाँ हम देख पा रहे सभी ने रेज हैंड कर दिया, सर मैं समझ गया, ठीक है मैं छोड़ के आपको समझ गए। लेकिन जेंट्स टीचर भी तो मैं देख पा रहा हूँ सब कंफ्यूज है, ये क्या है? वॉशिंग मशीन सर। वॉशिंग मशीन, अच्छा आपको टीचर ने बता दिया इसलिए। अच्छा अब मैं वही टीचर को बुलाऊंगा जिस टीचर ने सर को बताया कि ये वॉशिंग मशीन है। रीजन क्या है कि उनको और अच्छे से पता होगा। लेडी टीचर्स जो है वो उनको काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जेंट्स टीचर भी समझ सकते हैं, इसलिए कि आज के डेट में तो हम लोग भी कपड़ा इसी में ही वॉश करते हैं। तो जिन टीचर ने बताया मैं उन्हीं टीचर को स्टेज में बुलाना चाहूंगा और वही टीचर इसको स्टेज। तो मैं कॉल सीनियर मोस्ट टीचर रेशमी वर्मा मैम, प्लीज मैम आपने ही बोला आपको ही डिफाइन करना है लोगों को। थैंक यू साजू सर। जैसे कि स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो मशीन है जिसमें नॉर्मली हम लोग जानते हैं, एक पहली बार ये नोन है हमारे लिए, बहुतों के लिए ये अननोन होगा। शायद मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, फर्स्ट वन कोई बता सकते हैं कि क्या है, आपको लुक वाइज में क्या लग रहा है? आई थिंक अगर आप देखें तो थोड़ा ड्रम टाइप में लग रहा है। हाँ, एम आई राइट? जी, फर्स्ट जो है ये ड्रम टाइप का लग रहा है, बट ये रियल में वॉशिंग मशीन ही है, जो कि पहले के टाइम में यूज किया करते थे हम लोग। बेसिकली हम लोग अभी मॉडर्न जमाने में रहते हैं तो हम लोग उतना नोट नहीं है इससे, लेकिन ये पहले के टाइम जो लोग थे वो इसी में कपड़े डालते थे, बाय फोर्सफुली इसे क्या करते थे, वॉश करते थे। अगर आज के डेट में दिया जाए तो क्या आप लोग वॉश करना चाहेंगे अपने फोर्स लगा करके? नहीं। इवन हम लोग इतनी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं कि हाथ से भी धोना पसंद ना करते। एम आई राइट? यस। आई थिंक मैं लेडी टीचर से भी पूछना चाहूंगी, क्या वो अपने हाथों से ही धोना चाहेंगे इतनी फोर्स लगा करके? मैम रिप्लाई प्लीज। नहीं। जेंट्स टीचर जो होंगे वो ज्यादातर अपने घरों में गंदे कपड़े लाके वाइफ या फिर अपनी बहनों को दे देते हैं धो देना, होता है ये चीज। पर आज के डेट में क्या है, हमारे पास मॉडर्न मशीन होने की वजह से हम लोग उतना ज्यादा टायर्ड फील नहीं करते हैं। हम लोग अब क्या है, मशीन में डालते हैं, ऑटोमेटिक है, ना ही पानी डालना ना कुछ करना, स्विच ऑन करना है और जस्ट उसके बाद में क्या होता है, प्रॉपर कपड़े धुल जाते हैं। इवन क्या होती है कि धुलने के बाद हम लोग को ड्रेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस सब ऑटोमेटिक है। पहले के टाइम में वॉश करना पड़ता था, इवन उसको क्या करना था,
था प्रॉपर उसको ड्रेन करना पड़ता था, धूप में सुखाना पड़ता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से हुई है, लग्जरी लाइफ की वजह से हुई है, मशीन में चेंजेस की वजह से हुई है। इवन आज की डेट में हम लोग ज्यादातर नेल पॉलिश यूज करते हैं, नेल्स ज्यादा प्रॉपर रखते हैं। एम आई राइट? अपने पे ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपने हेल्थ पे ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी ब्यूटी पे ज्यादा ख्याल रखते हैं। पर यहाँ पे अगर पहले के टाइम की बात करते तो हमारे नेल्स की तो कंडीशन बहुत खराब होती ना दीदी टीचर्स? हाँ, तो जस्ट यहाँ पे मशीन में डालना है और हम अपनी ब्यूटी को भी मेंटेन रखते हैं साथ ही साथ। तो बस यहाँ चीज जो दिख रही है वो हम लोग अपनी लाइफ में यूज भी कर रहे हैं और प्रॉपर लेके चल भी गए। जहाँ बात होती है कपड़े धोने की, तो पहले के टाइम में ना ही हम लोग ज्यादा भारी कपड़े मशीन में डाल सकते थे, उसे हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं था, सिर्फ उसे हाथी से वॉश करना पड़ता था। पर अभी के टाइम में हम लोग के पास में जितने भी ब्लैंकेट्स है या फिर जितनी भी भारी जो भी चीजें हैं वॉश करने के लिए, कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं और इजीली अपने आप में उसको बहुत कम टाइम में फिर से रीयूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें एडवांस में इसलिए आई है क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं। और मार्केटिंग की बात हो रही है तो मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी कि अगर ये हमारे पास में पहले का ऑप्शन रहता तो मार्केटिंग बेसिस पे शायद हम लोग उतना प्रीफर नहीं करते, पर अभी हमारी लग्जरी लाइफ की वजह से हम लोग ज्यादातर उस चीज को यूज करना चाहते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाए। तो यहाँ पे मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी उसमें वन ऑफ द पार्ट है जो कि हम लोग की लाइफ क्या कर रही है, बहुत ज्यादा इजी बना रही है ना दीदी टीचर्स? जिसकी वजह से हम लोग अर्ली मॉर्निंग आकर के अपने सारी शेड्यूल्स को प्रॉपर कर पा रहे हैं और सारे वर्क प्रॉपर करते हैं। इवन अब हमारी टेंशन भी फ्री हो जाती है इस चीज को लेकर के कि लाइट्स है, प्रॉपर पानी है, बस स्विच ऑन करो और सारा टेंशन फ्री, सारे कपड़े ऑटोमेटिक धुल गए। उसके साथ ही साथ हम लोग अलग अलग काम भी कर पाते हैं, खाना बनाना हो, घर में बच्चों को देखना हो या और अदर वर्क हो प्रॉपर कर सकते हैं, है ना? मेरे बच्चे नहीं है बट मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लेडी टीचर्स ऐसे हैं जो मैरिड है, उनके बारे में भी बात कर रही हूँ। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि मार्केटिंग जो है उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर अवेयर होते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या लग्जरी चीजें हम लोग यूज करें कि हमारी टाइम जो है उसको सेव कर सके, कंज्यूम कर सके। तो हमारी नीड्स के बेसिस पे ही हम लोग उस चीज को परचेज करते हैं और अपनी लाइफ क्या करते हैं, इजी बनाते हैं। सो फाइनली मैं अपने वर्ड्स को लास्ट करना चाहती हूँ ये कह करके कि मार्केटिंग ही हमारी लाइफ की एक पॉलिसी है जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी लाइफ को कि कितनी अच्छी लाइफ हम लोग जी रहे हैं इन कंपैरिजन टू पास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सॉरी मैम, सर इसके आता है कि 2-3 एग्जाम्पल में सर लाए। थैंक यू सो मच मैम। आपने वही बात रखी, डिजायर, नीड्स, वांट। एक एग्जाम्पल माइंड में आता है, किसी भी चीज को खाने से पहले हम लोग सोचते हैं खोलो, निकालो, खा लो। ये एग्जाम्पल वैसे ही यहाँ भी है, डालो, सुखाओ, पहन लो। इट इज अ पॉलिसी ऑफ मार्केटिंग। ये है मार्केटिंग का पॉलिसी। पहले भी ऐसा नहीं, मैंने बताया कपड़े डालो, हाथ से चलाओ, फिर वो ड्रेन करने वाला प्रोसेस, फिर उसके बाद सुखाने के बाद पहनने वाला, यहाँ कुछ नहीं है सर। और मैंने काफी डिटेल्ड फॉर्म में इसे बताया, तो मैं इस टॉपिक को यहीं से क्लोज करता हूँ। थैंक यू मैम, आपने बताया, इससे मैं इससे रिलेटेड काफी कम एग्जाम्पल्स जाता था। तो नेक्स्ट टाइम सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये स्लाइड अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो आप मार्केटिंग को एकदम बेस्ट वे से समझ जाओगे। और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिजिटली सोचना है, इसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलेंगे, और ट्रेडिशनल को भूल जाना है। ट्रेडिशनल अगर नहीं होगा तो डिजिटल पॉसिबल ही नहीं।
मार्केटिंग को दो पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नेक्स्ट वन डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग। ट्रेडिशनल्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आज के डेट में भी होते हैं। हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो ट्रेडिशनल है ये ओल्ड वर्जन है, आज के डेट में इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, यूज नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो आप देख पा रहे हो एग्जांपल्स मैंने दिया है, ये हम लोग आज भी यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है टीवी एड्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को जब हम टेलीविजन देखते हैं तो उसमें ऐड आता है। अब वो ऐड को हम लोग देखते हैं कि विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है तो वो जर्सी में उसका कुछ लिखा है। जैसे पहले की जर्सी में आप विराट कोहली का देखोगे तो वहां पर ओप्पो, एक मोबाइल है ओप्पो कंपनी का ब्रांड है, वो ओप्पो लिखा हुआ है। लेकिन आज जब विराट कोहली को जर्सी पहनता है उसको बायजूस लिखा हुआ है, जो ट्रेंडिंग है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इट इज अ मार्केटिंग। हम जितने भी ऐड टेलीविजन में देखते हैं वो सारे ऐड सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, मार्केटिंग से। प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल करना, कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स को फुलफिल करना, इट इज मार्केटिंग। और मार्केटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेलीविजन। और टेलीविजन में जो ऐड चलते हैं उसको हम स्किप नहीं कर सकते, उसको हमको देखना हो। मे भी जब कोई ऐड हम देखें उस टाइम हमको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है फिर हम लोग परचेज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ ये भी प्रोडक्ट मार्केट में है। इन फ्यूचर जब भी प्रोडक्ट हमको परचेज करना होगा फिर हमारे माइंड में फिट है कि ये मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट एग्जांपल टीवी एड्स, नेक्स्ट एग्जांपल रेडियो एड्स। बहुत सारे हमारे घर में फैमिली मेंबर है वो टेलीविजन नहीं देख करके वो रेडियो सुनना प्रेफर करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे घर में हमारे फादर हमारे दादाजी ये सब रेडियो सुनते हैं और रेडियो में भी ऐड आता है। ये सब ओल्ड है, ट्रेडिशनल है। इसमें हम लोग ऐड सुनते हैं कि ऐसा जैसे क्रिकेट का हम लोग कोई कमेंट्री सुन रहे हैं उसमें अचानक से वो कोई ऐड आ गया। उस टाइम को हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज़ की, लेकिन ये मार्केटिंग का प्रोसेस है। मैंने आपको बताया मार्केटिंग का सिंपल सा लॉजिक ये है, कस्टमर के माइंड में उस ब्रांड के प्रोडक्ट को फिट कर देना, सेट कर देना। अगर कस्टमर को कभी भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होगा फिर वो आपके उसी प्रोडक्ट उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करें। इट इज मार्केटिंग। नेक्स्ट न्यूज़पेपर। हम सभी के घरों पे न्यूज़पेपर आता है, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे एड्स होते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। एड्स को हम लोग स्किप करते हैं, फिर पढ़ लिए ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट है, फिर नेक्स्ट पे पढ़ लिए, फिर कुछ ऐड, कभी कुछ ऐड। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में फिट हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट है। अगर हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोडक्ट की देन हम किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर मैं कुछ दिनों से न्यूज़पेपर देख रहा था उसमें आप देखोगे बाटा एक शूज की कंपनी, लेटेस्ट कंपनी, बहुत नई कंपनी, उसका ऐड आ रहा है 50% डिस्काउंट। मुझे शूज की रिक्वायरमेंट देखी तो ठीक है, मैंने देखा कि हाँ ठीक है, फिर कोई दिन तक कंटिन्यूअस होता रहा, फिर मुझे रिक्वायरमेंट हुआ एक शूज परचेज करना। फिर मेरे माइंड में तो फिट था ना कि इसका ऐड कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर में आ रहा है, इट इज अ बेस्ट ब्रांड। फिर अब मैं शूज जाके परचेज किया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग। बट मेरे माइंड में जो वो प्रोडक्ट फिट हो गया कि मुझे परचेज करना है तो बाटा का ही शूज परचेज करना है।
जिसे मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू देखा, इट इज मार्केटिंग। नेक्स्ट होर्डिंग। हम कहीं भी विजिट करते हैं, बाइक से विजिट करें, कार से विजिट करें, इनफैक्ट ट्रेन से या फिर बस से विजिट करें, हम देखते हैं बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा होता है, उसमें भी एड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, ओप्पो का नया मोबाइल, सैमसंग का नया ब्रांड का मोबाइल, आईफोन लेटेस्ट जो भी लॉन्च हुआ 15, उसका वहाँ ऐड लिखा है। उसमें ये भी लिखा होता है कि EMI फैसिलिटी, कितना पेमेंट करो EMI। वो होर्डिंग कहीं ना कहीं मैंने देखा और मेरे दिमाग में सेट होता है। ट्रेडिशनल वे, उस प्रोडक्ट को अगर मुझे किसी भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा सर ने बताया डिज़ायर, वो मेरे अंदर डिज़ायर है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी फ़ोन लेना है, तो मेरे माइंड में फिट हो गया, मुझे फ़ोन लेना होगा तो मैं आईफोन 15 लूँगा। मुझे अगर फ़ोन लेना होगा तो मैं सैमसंग के ही इस फ़ोन को परचेज करूँगा। मैं मोबाइल परचेज करूँगा तो मैं ओप्पो की इस सीरीज को परचेज करूँगा। इट इज मार्केटिंग। जब मैं वो होर्डिंग को देखा उस टाइम तो परचेज करना नहीं था, लेकिन जब भी मुझे नीड्स हुई तो मैं उस कंपनी के मोबाइल को परचेज, जब मैं परचेज किया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग, वो सेल किया, मैंने परचेज किया, लेकिन वो जब मेरे माइंड में सेट हो गया वो प्रोडक्ट मुझे लेना है तो वही प्रोडक्ट लेना है, इट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और ये मार्केटिंग का प्रोसेस ट्रेडिशनल वे न्यूज़पेपर के थ्रू ही पूरा होता है। नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल, कॉलिंग। कभी कभी हमें कंपनी से कॉल आता है, सर मैं सैमसंग से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हमारी कंपनी की लेटेस्ट फोन लॉन्च किया, उसकी यही सब फीचर्स हैं, क्या आप परचेज करना चाहोगे? मुझे परचेज नहीं करना मोबाइल, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है, फिर भी मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। अब वो मेरे अंदर डिजायर है, लेटेस्ट फोन मार्केट में लॉन्च है, आप इसे परचेज करें। कभी मुझे कॉल आ गया, रिजनेबल रेट पे ये फ्लैट बिक रहा है, क्या आप परचेज करना चाहेंगे? कॉल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो गया, तभी मुझे परचेज करना होगा, तो यहाँ पर फ्लैट अवेलेबल है, मैं परचेज करूँ। मुझे कार परचेज करना था, मैं न्यूज़पेपर में ऑलरेडी ऐड देख चुका हूँ डिस्काउंट, बट मुझे कॉल भी आ गया, मैं होंडाई शोरूम से बात कर रही हूँ, सर मेरे यहाँ ऐसे ऐसे अभी लेटेस्ट कार अवेलेबल है, EMI फैसिलिटी भी है, क्या आप परचेज करना चाहोगे? मेरी नीड्स थी, मेरे अंदर डिजायर पैदा हुआ, अब मैं सोचा कि मुझे कार लेना है तो मैं होंडाई का ही कार लूँगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग जो कॉलिंग के थ्रू पूरा होता है। लेकिन वो जो ऐड मैं देखता था उसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन मेरे न्यूज़पेपर में जो ऐड आते थे उससे पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मैं रेडियो में टेलीविजन में देखा। लेकिन कॉलिंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज अ ट्रेडिशनल वे के थ्रू मेरी नीड्स पूरी हुई और मैं कार परचेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोर टू डोर। कभी कभी आप देखते हो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होते हैं, कुछ लोग हमारे डोर पे आ जाए, सर मेरी कंपनी ये स्टोव लॉन्च किया, क्या आप परचेज करोगे? तो पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल, पर्सनल मार्केटिंग का एग्जाम्पल, वो मेरे पास आकर के हर डोर टू डोर विजिट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल वे कि हर मोहल्ले में, हर घर पे जाके डोर टू डोर वो प्रोडक्ट को बेचो। ये भी मार्केटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, रोड शोज। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रोड पे बहुत सारे शो होते हैं और वो शो में उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज दिया जा रहा है, तो इंटरटेन यू, आपको इंटरटेन भी करना।
तो आप उस प्रोडक्ट को जानते हो, तब आप उसे परचेज करते हो। तो ये रोड शो भी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मार्केटिंग का। और ये ट्रेडिशनल में है, ये ट्रेडिशनल के वो ही पूरा हो पाए, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। नेक्स्ट इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स में आप देखते हो कि बड़े बड़े पीछे होर्डिंग लगे होते हैं, या फिर कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं जो कई लोग, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होती है। या क्रिकेटर लोग इवेंट्स करवाते हैं तो उसमें वो जर्सी वगैरह पहनते हैं, तो वो कोई भी इवेंट्स होगा तो पीछे कुछ ना कुछ मेंशन होगा। और वो सिंपल सा लॉजिक होता है कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वो सिंपल सा प्रोसेस कि अगर कस्टमर को कभी भी नीड्स होगी प्रोडक्ट, तो वो आपके ही प्रोडक्ट को परचेज। अब लर्निंग एप्स का बहुत सारा एग्जांपल देते हैं, जो अभी रिसेंटली मैं देखा हुआ है, जनरली होता है वो बायजूस ऐप, आकाश डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबके ऐप होते हैं। वो आपका वहाँ होर्डिंग में लगा होता है, किसी के जर्सी में लगा होता है, माइक के पीछे लगा होता है, या फिर आप देखोगे बॉटल में, कोई भी इवेंट्स में आप ऐसा देखते हो। इट इज अ ट्रेडिशनल में लास्ट रेफर, ये भी ट्रेडिशनल। मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मुझे अच्छा लगा, बेस्ट प्रोडक्ट, तो मैं अपने फ्रेंड्स में, मैं अपने कलीग्स में, मैं अपने स्टूडेंट्स को, या मैं किसी को भी, अपने फैमिली को उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। बोलूंगा कि अगर आपको भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप इसी प्रोडक्ट को परचेज, इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मार्केटिंग। अगर मैं उस प्रोडक्ट का नोड हूँ, उस प्रोडक्ट को अच्छे से जानता हूँ, तो मैं किसी को भी रेफर करूंगा, वो प्रोडक्ट मेरा सेल होगा। इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल में हमने देखा टीवी एड्स, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, कॉलिंग, डोर टू डोर, रोड शो, इवेंट्स एंड रेफर। लेकिन आज का जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो लोग डिजिटल फॉर्म को फॉलो करते हैं, डिजिटली हो, मेक इन इंडिया, मेक इन डिजिटल इंडिया। आज हम लोग को ये कोटेशन सुनने को मिला, और ये कोटेशन का सिंपल सा डिजिटली जो आपको मार्केटिंग होना है, डिजिटली मार्केटिंग ऑफ एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया एड। अब हमको जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करना है, उसके लिए हम डिजिटल वे को फॉलो करेंगे। और आज हम लोग जानते हैं कि डिजिटल में आपका सोशल मीडिया है, इसमें हम सब एक्टिव होते हैं। आज हम में से जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, सभी का सोशल मीडिया में अकाउंट होगा, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मैंने एग्जाम्पल्स में मेंशन किया गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लॉट्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल गूगल, विदाउट यूजिंग एनी ऐप, ओनली गूगल में आपको कोई भी प्रोडक्ट को लिखो, आपका सारा इंफॉर्मेशन उससे आ जाए। अब हम समझते हैं कि ये डिजिटली मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केट कैसे है। इसमें गूगल, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम का बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने गूगल को लिया है, और आप यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ देख पा रहे हो, जिसमें मैंने साइड में यहाँ मेंशन किया है। अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है या परचेज नहीं भी करना है, मैं गूगल में कुछ और सर्च कर रहा हूँ, मुझे अचानक से वो ऐड देखने को मिल गया, ये प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट, इस प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट, लाइक दिस। मैं उसे सर्च भी नहीं किया, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने सर्च किया होगा, तो वो मेरे सर्चिंग इंजन में आ गया। अब वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इसका ये है, प्राइस है, लाइक अगर मुझे केक परचेज करना हुआ होगा तो मैंने केक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, उसके एड्स आने लगे कि इस केक को आप परचेज करो, उसमें ये डिस्काउंट है, यहाँ पर इतने डिस्काउंट है, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5%। इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। होटल के थ्रू वो भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है, परचेज करो तो दिस। यहाँ देखा नेक्स्ट टाइम में मैंने मेल एड्स को डाला,
कभी कभी हम लोग मेल में विजिट करते हैं, कुछ मेल चेक करते हैं, वहां पे भी एड्स है। इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट वो एड्स जब आते हैं तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम जान जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट में है। अगर आपको परचेज करना है तो आप इन्हें ही परचेज करेंगे। जैसे वो आप जो ट्रेडिशनल में देखे थे कि टीवी में ऐड आना, होर्डिंग का लगना, डोर टू डोर, अगर वो प्रोडक्ट को वो पर्सन अगर कोई लॉन्च करना चाहेगा तब तो, लेकिन यहाँ तो कोई खर्च नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, वहाँ डाल देना। और मोस्ट ऑफ द कस्टमर सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो वहाँ से हम ऐड को देख लेते हैं। तो गूगल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मार्केटिंग। और कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कोई भी शॉपिंग करना है, तो गूगल से डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई ऐप की जरूरत नहीं। तो आज के डेट में जो सर्चिंग इंजन सबसे बड़ा आपको गूगल है, तो गूगल का ही एग्जाम्पल आपका जीमेल है, मेल्स में भी आया है। आज कुछ नहीं, टीवी नहीं चाहिए, रेडियो नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर कुछ, गूगल मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल में ही सब कुछ देख सकता हूँ। ये सारा इंटरनेट से रिलेटेड है। और आप जान के शॉक करोगे, इंडिया में जो इंटरनेट यूजर है वो 251 बिलियन प्लस है। इतने लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो हर घर में अगर 5% है तो उसमें से 4% इंटरनेट यूज कर रहा है। शायद ही कोई होगा इंटरनेट यूज नहीं कर रहा। तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटली कॉन्सेप्ट, वो सबसे अच्छा मार्केटिंग का एग्जांपल है आपका गूगल। इट इज द बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट स्लाइड सर। फेसबुक नेक्स्ट एग्जांपल सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हम सभी यहाँ टीचर्स प्रेजेंट या और भी जितने भी लोग होंगे, इनफैक्ट स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे बच्चे सभी का फेसबुक पे अकाउंट है, फेसबुक पे अपने अकाउंट बनाएंगे। अब जब देखोगे हम फेसबुक पे सर्च करते, फेसबुक पे स्क्रॉल करते बढ़ते आगे देखते हैं, अपने नोटिफिकेशन चेक करते, वहां भी एड्स आते हैं। अब देख पा रहे हो, मैंने यहाँ एक पोस्टर बनाया, एक इवेंट होने वाला है, उसमें इतने एक्टर्स लोग आ रहे हैं, उसका ये भी है, यहाँ होने वाला है, दुबई में प्रोग्राम हो रहा है, दुबई में कोई इवेंट है, और मैं यहाँ अपने घर बैठ करके भी अपने छोटे से डिवाइस मोबाइल में उस चीज को देख पा रहा हूँ। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया इंटरनेट के थ्रू। दुबई में प्रोग्राम होने वाला है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। जब कोई भी ऐसा चीज, जब कोई भी शॉपिंग, जब कुछ भी प्रोडक्ट को मैं परचेज करना चाहूँ तो मैं फेसबुक पे देखता हूँ। फेसबुक में लिंक डाले रहते हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए, आसानी से पेमेंट कीजिए, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। क्या मार्केटिंग का लेटेस्ट प्रोसीजर, कोई ऐड नहीं, कोई शॉप नहीं जाना, कोई पेमेंट नहीं करना, सिंपल सा प्रोडक्ट लिंक पे जाइए, कार्ड का सीवीवी नंबर डालिए, पेमेंट कीजिए, प्रोडक्ट घर पे। बेस्ट एग्जांपल फेसबुक। कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल फेसबुक को विजिट कीजिए, स्क्रॉल कीजिए और आपको प्रोडक्ट दिखा, और आपको अगर रिक्वायर है तो आप उसे परचेज कीजिए। बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एकदम सेम मेथड जो होता है इंस्टाग्राम। ये लेटेस्ट है, फेसबुक तो कुछ बोलेंगे ओल्ड हो गए से, ठीक, ये लेटेस्ट था। इंस्टाग्राम, इंस्टा पे सभी लोग एक्टिव होते हैं और हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और आप देखोगे जब इंस्टाग्राम पे विजिट करोगे तो आपको वहां पर भी एक पोस्टर दिखने को मिलेगा। ये भी तो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है, ये भी तो मार्केटिंग हो रहा है ना। इवेंट हो रहा है आपका दुबई में, आप कहीं भी हो उस इवेंट के बारे में हर चीज को जान पाओगे। कौन कौन लोग आप परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ मेंशन है कौन कौन परफॉर्म करने वाले, कितने लोग आने वाले। वहां पे कमेंट का ऑप्शन रहता है, वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये यहाँ पर आने वाले, इवेंट का डेट कब है, चार्ज क्या है, पेमेंट कितना करना है। डिजिटल
क्या मार्केटिंग प्रोसीजर, प्रोडक्ट को सेल करना है, इंस्टाग्राम में डाल देंगे, कोई खर्च नहीं। आपके फॉलोवर्स अगर 5000 है तो 5000 प्लस लोग आपको जानेंगे, एक दूसरे से शेयर, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह ये सेम वर्क करता है फेसबुक के जैसा। जैसे फेसबुक में वर्क करते हैं वैसे कमाल आपका इंस्टाग्राम है, ये उससे लेटेस्ट पेज यूज करिए मार्केटिंग। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट यूट्यूब, ये आज से नहीं बहुत पहले से चला रहा है। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको जानना है तो मार्केटिंग का सबसे अच्छा प्रोसेस है यूट्यूब। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल लेटेस्ट फोन अभी आईफोन 15 आ गया, मैं एंड्रॉइड में हूँ, मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ और अचानक से मुझे iOS पर यूज करना पड़ेगा तो मैं नहीं करता हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो, तो मैं कुछ नहीं यूट्यूब पर जाके सर्च करूंगा हाउ टू यूज आईफोन 15 प्रो, अब मैं यूज करता हूँ इजी में। अगर मुझे जानना है कि कोई प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ तो वो बॉक्स में क्या क्या मेंशन है तो मैं अनबॉक्सिंग देखूंगा, बॉक्स का अनबॉक्सिंग देखना है कि अगर वो बॉक्स को मैं खोलता हूँ तो उस बॉक्स में मुझे क्या क्या मिलेगा, तो इसके लिए बेस्ट है सब यूट्यूब। यूट्यूब में एड्स भी आते हैं और वो एड्स कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है, आपने कभी ना कभी सर्च किया होगा तो ही वो एड आपको मिल रहा है। रिपीट वही, कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स, कस्टमर डिजायर, ये कस्टमर के लिए ही है और हम सब कस्टमर, वी आर किंग। मार्केटिंग के लिए किंग कौन? कस्टमर। कस्टमर ने कभी ना कभी सर्च किया और प्रोडक्ट का मार्केटिंग इजी वे में हो गया, वो पॉसिबल किससे हो पाए? यूट्यूब। तो आपने जाना डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल टुडे। इसमें हम लोग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब और जितने भी सोशल साइट है सबको हम उपयोग करते हैं। तो मैं चाहूंगा अब आप में से एक टीचर यहाँ आए और कभी ना कभी आपने इंग्लिश साइट से फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब या कभी भी किसी प्रोडक्ट को इसमें देख के परचेज किया होगा, तो वो अपनी बातों को शेयर करें। तो एनीवन जो आप आना चाहे प्लीज आप रेज हैंड करें। बहुत सारे टीचर्स जेंट्स टीचर ने हैंड कर दिया तो सबको तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कॉल आदि सर, प्लीज सर आप आए और कुछ आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कभी ना कभी किया होगा डिजिटली बेस्ड, तो आप कैसे समझो उस प्रोडक्ट, प्लीज। गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज हम लोग का जो सेशन है वो है बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग टॉपिक पे, और जैसा कि सर बताया मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग एक्टिविटी को रेफर नहीं करता है, मार्केटिंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेवरल अदर थिंग्स, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि टू फैसिलिटेट द प्री सेल कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर एंड ऑल्सो टू लुक आफ्टर द पोस्ट सेल सर्विसेज। आप मार्केट में जब कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसका सेल होने से पहले कुछ कंडीशंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री सेल कंडीशंस। तो उस कंडीशंस को फैसिलिटेट करना भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और इसके साथ साथ सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि जब आप किसी चीज़ का सेल कर लेते हैं तो उस सेल के बाद पोस्ट सर्विस सेल होता है कि अगर वो प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ रहा है या कुछ रिपेयरिंग का जरूरत है तो उसको कस्टमर खुद ला के देगा या फिर आप खुद उसके 2 स्टेप से करेक्ट कर लेंगे, या फिर उसका गारंटी पीरियड क्या है, कितने टाइमिंग क्या रहेगा उसको कॉल करने का कस्टमर्स को, अपने डीलर्स को, ठीक है। तो ये सारा पोस्ट सेल सर्विसेज कंडीशन है। तो मार्केटिंग ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द टू फैसिलिटेट द प्री सेल कंडीशन एंड टू लुक फॉर द पोस्ट सेल कंडीशंस। हम लोग देखते हैं
कि मार्केटिंग ये भी कहता है कि डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, रादर फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। मतलब आप किसी भी जगह पे जाए तो ऐसा नहीं कि आपका जो मन है उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके बैठ गए। इससे क्या होगा कि आपको अपना प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर खोजते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके उल्टा आप ये करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट्स चाहिए वो आप अगर उसका मार्केटिंग करेंगे, उसको आप रखेंगे, तो योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विल बी इम्पोवर्ड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग कश्मीर में जाके एसीज का, ठीक है, एसी का अगर हम लोग प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे तो क्या एसी वहाँ बिकेगा? उसका सेल वहाँ पर उतना नहीं रह सकता क्योंकि पहले से कोल्ड एंड क्लाइमेटिक रीजन है। अगर इसी पार्ट में हम लोग सेकंड में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग राजस्थान में जाकर, ठीक है, हॉट हीटर्स का सेल करना चाहे प्रोडक्ट का, तो क्या वो हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस पता है। अगर हम लोग लोकल में देखेंगे, अपना अकाउंट में ही देखेंगे, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग डेमोग्राफी होता है, ठीक है। So it is very important to understand the essentials of the demography of the place you are inhabiting to deliver your business. और उसको डिलीवर करने के लिए आपको वहाँ का डेमोग्राफी समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि किसी एरिया में कॉलेज है, तो कॉलेज के आसपास आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मेरा बिजनेस एंटिटी है जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स स्टोर, यूनिफॉर्म स्टोर्स, ठीक है, फोटो कॉपी, ये सब सारा चीज ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। दूसरा चीज इससे रिलेटेड ये है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जैसा अभी सर बताया कि बहुत सारा अलग अलग तरीका है, ट्रेडिशनल वेज, मॉडर्न वेज, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है टू सक्सेसफुली डिलीवर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड टू अर्न अ गुड मार्केट। अपने लिए अच्छा मार्केट अर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आजकल ना मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स को भी यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड अभी भी फुली आउटडेटेड नहीं है। वी रिलाई ऑन देम। प्लस इफ यू डोंट गो फॉर मॉडर्न वेज, अगर हम लोग मॉडर्न वेज के पीछे नहीं जाते तो हम लोग का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है इट विल टर्न आउट टू बी ऑब्सोलीट, आउटडेटेड एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हम लोग दोनों चीज का मिक्स करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज का भी और मॉडर्न स्ट्रेटेजीज का भी। एक एग्जांपल से आपको बताना चाहेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी एंटिटी में। किसी भी एंटिटी में अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस है दो आदमी में, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग यहाँ हजारीबाग से रांची हाईवे जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में दो रेस्टोरेंट्स है, अच्छा रेस्टोरेंट्स है, दोनों सेम है, इक्वल है इन टर्म्स ऑफ फूड, एम्बियंस, प्राइसेस, दे आर इक्वली कंपैटिबल विद द कंज्यूमर्स। बट if there is a difference in their marketing strategies, so whichever will provide the better marketing strategies, it will have a greater impact on the customers and they would earn a greater market. इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो अगर रेस्टोरेंट्स है, एक रेस्टोरेंट का अगर नाम जो रखते हैं वृंदा रेस्टोरेंट और एक का नाम रखते हैं मधुबन रेस्टोरेंट, ठीक है। वृंदा रेस्टोरेंट क्या किया कि जब भी उसका कस्टमर्स वहाँ से गुजर रहा है, जब भी उसका कस्टमर्स वहाँ से गुजरेगा तो एक होर्डिंग लगाया हुआ है, और होर्डिंग कहाँ पे है? जस्ट जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है उसी के आगे लगा दिया वृंदा रेस्टोरेंट, यहाँ का फूड अच्छा है, इस तरह से लगा दिया। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, सेकंड जो रेस्टोरेंट है जिसको हम मधुबन रेस्टोरेंट बोल रहे हैं, उसमें क्या किया है कि वो रेस्टोरेंट जो है उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग कैसे है कि वो अपना कस्टमर्स के लिए 3 पॉइंट पे होर्डिंग लगाया हुआ है। पहला होर्डिंग है 100 मीटर्स प्रायर टू द रेस्टोरेंट, पहला जो होर्डिंग है वो जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट उससे 100 मीटर पहले भी एक होर्डिंग लगा हुआ है, उसके आगे आप 50 मीटर जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक होर्डिंग लगा हुआ है, और थर्ड जो है जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी लगा हुआ है। अब अगर कोई कस्टमर गुजर रहा है, ठीक है,
तो पहला होर्डिंग उसको 100 मीटर्स पहले ही दिख गया, जिसमें लिख रहा है कि दिस इज अ नाइस रेस्टोरेंट, यू कैन हैव अ गुड फूड एट अ फेयर प्राइसेस। तो ये उसके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। और जब आगे बढ़े वही बात फिर से लिखा हुआ है, उससे भी आगे जब बढ़े तो वो बात फिर से लिखा हुआ है। तो इससे होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली उसका माइंड स्ट्राइक कर रहा है कि ठीक है आगे क्या है देख ले, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। और धीरे धीरे उसके ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि नहीं अच्छा होगा। तो ऐसा रिपोर्ट में पाया गया कि इस तरह का जो सेकंड रेस्टोरेंट है उसका कस्टमर्स जो है वो ह्यूज नंबर्स में है, लार्ज नंबर्स में है, कंपेयर टू द रेस्टोरेंट विच इज ओनली यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। इसी में एक और एग्जांपल है कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो अपना सेलिंग को जो है अब ऑनलाइन भी कर दिए, जैसे जोमेटो, स्विगीज आ गया। तो ये सब क्या प्री सेल कंडीशन को फैसिलिटेट कर रहा है। अब आपको डायरेक्ट उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना कॉस्ट उठा के अपने घर से वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, अपना पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद डिलीवर कर देगा ऑनलाइन। तो इससे जो सेलर है उसको भी आसानी हो रहा है, जो बायर है, कंज्यूमर है, उसको भी आसानी हो रहा है। इस रेफरेंस में जोमेटो और स्विगी के अलावा भी बहुत सारा और जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, और भी जितना है, आप कहीं ना कहीं अगर कोई गेम भी खेल रहे हैं तो उसमें भी बीच में एडवर्टाइजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर को पता है कि यूट्यूब पे एडवर्टाइजेस आता है, जैसे आपको एक बार सर्च करिए, जैसे अभी बिग बिलियन डेज चल रहा है तो हम स्पोर्ट्स शूज के बारे में सर्च किए थे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स शूज के रिलेटेड सर्च किए फ्लिपकार्ट पे, अब वो उसका ऐड मेरे को रेगुलर बार बार यूट्यूब में भी आ रहा है, ठीक है। अलग अलग प्राइसेस, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ब्रांड, ठीक है, ये सारा चीज का ऐड आते जा रहा है, उसका ब्रांड एंडोर्सर कुछ रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि हम लोग के माइंड में फिट होते चला जाता है कि नहीं, हम लोग को माइंड पक्का करके चला जाता है कि अगर लेना है तो आप देयर आर सेवरल थिंग्स, और आपको इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली पहुंच जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज फॉर डूइंग द मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल सोर्सेज, डिजिटल मीडिया। इसके अलावा ट्रेडिशनल मीडिया का भी अपना एक इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो अपना लूज आउट कर दिया है। आज भी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का बहुत सारा पार्ट यूज किए बिना मार्केटिंग को सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे कि उसमें था टीवीज, रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप देखिए अगर छोटा से छोटा अगर एंटिटी है तो अपना होर्डिंग जरूर लगाता है वहाँ पे कि हाँ ये टेलर शॉप है या फिर ये शू शॉप है। तो इस तरह का होर्डिंग्स हम लोग को देखने को मिलता है। होर्डिंग्स फिर टीवीज में ऐड आता है, न्यूज़पेपर्स में हम लोग देखने में बराबर ऐड आते रहता है रेगुलर बेसिस, ठीक है। ये प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइन, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ठीक है, और भी अलग अलग सारा चीजेस का एड्स आते रहता है। तो कंपेयर करने पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ना ट्रेडिशनल मेथड लैक कर रहा है ना मॉडर्न मेथड। The need of the hour is to combine both the methods and to achieve a greater result in the marketing and to earn a greater consumers in terms of higher profits. So that is all I have to say. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल जो वे था और जो मॉडर्न वे था, हमें ऐसा नहीं करना है कि डिजिटल वे आज आ गया तो ट्रेडिशनल वे भूल जाना है। गो टू होर्डिंग का प्रोसेस, कॉलिंग का प्रोसेस, डोर टू डोर और लेटेस्ट फैसिलिटी वो भूल जाना है, ऐसा नहीं। हमें डिजिटल वे के साथ साथ अपने ट्रेडिशनल वे को भी रखना है। और सर ने अच्छे एग्जाम्पल दिए, जोमेटो की दिए और एग्जाम्पल दिए और अपने बातों को रखा। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर ये टूल्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग मिक्स। अब हम लोग जानेंगे तो कौन कौन से टूल्स है जो मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूल्स ना हो तो हम मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। और आप इस टूल्स में देखोगे जिन्हें हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट वन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग करना है
प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये करना होगा। अगर आप इन टूल्स को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आप मार्केटिंग कैसे करो? प्लेस है ही नहीं, मार्केटिंग कैसे करो? प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करो? Then is an important slide, marketing goals, 4 P's of marketing mix, product, price, place and promotion. Next slide sir. Next slide में मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है। अब देख पा रहे हो यहाँ एक मैंने बाइक का फोटो यहाँ पेस्ट किया है और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, ब्रांडिंग, क्वालिटी, लुक, साइज, कलर, पैकेजिंग, कॉम्पिटिटर्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आज जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, आप देखोगे कि अगर हम बाइक परचेज करना है तो सो मेनी बाइक्स आर अवेलेबल है। आपके पास बहुत सारे बाइक ऑप्शंस जो परचेज करना है, लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं ब्रांड के पीछे जाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस। हमें ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख पा रहे, बाइक, अगर मुझे बाइक परचेज करना है तो बुलेट मैं लूंगा। मेरे दिमाग में माइंड में फिट है कि मैं बुलेट ही लूंगा, बुलेट मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट, ब्रांडिंग अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, लुक अच्छा है, साइज, कलर सब का प्रोडक्ट, तो ये मार्केटिंग का बेस्ट है। मुझे मोबाइल परचेज करना है, मेरे माइंड में जैसे ही मोबाइल आया मेरे माइंड में आया आईफोन ही लेना है। आईफोन का ब्रांडिंग कितना, मार्केटिंग प्रोसेस ये जो ब्रांड वैल्यू बना आईफोन का, अब आईफोन ही माइंड में आ रहा है और मार्केटिंग यही तो था, कस्टमर के माइंड में उस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेट कर देना कि जब भी प्रोडक्ट लेना हो उसी ब्रांड के ही प्रोडक्ट को परचेज करे। इट इज मार्केटिंग, और भी हो पाया प्रोडक्ट से। तो अगर हमें मार्केटिंग करना है तो हमको सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो ब्रांडिंग के थ्रू, लेबलिंग के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू ये सारा प्रोसेस है करना। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे प्रोडक्ट को हम मार्केट में देखते हैं तो पैकेजिंग में प्रोडक्ट नहीं मिलता, पैकेट में नहीं मिलता, वो आपको ऐसे ही दे देता। फॉर एग्जाम्पल दाल, चावल, चीनी, तो पैकेट नहीं किया। लेकिन मैं बोलूंगा जब आप परचेज करते हो तो आपको एक पॉली बैग जरूर दिया जाएगा, ये तो है, ये तो पैकेजिंग है ना, तो पैक किया हुआ। नेक्स्ट स्लाइड सर। प्राइस, ये प्राइस का आप देख पाओ, या 2 स्लाइड में मैंने किया है। प्राइस देखो, स्किन, इनके पास पैसा है, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना पाते हैं, वो ये फोन परचेज करेंगे। आईफोन के माइंड में सेट होता है कि जो हाई क्लास के लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनको अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करना पाते हैं, वो आईफोन, तो क्या ये किसके लिए है? ये भी तो अच्छा फोन है ना। तो सैमसंग, और आज के डेट में तो ये जियो पे आप देखोगे, जियो का अगर नेटवर्क यूज करते हैं कितना सस्ता है। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के माइंड पे, कस्टमर के नीड्स पे, कस्टमर के डिजायर पे, वो क्या चाहता है। तो आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं और ये प्राइस। अब जैसा प्राइस पे आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहो वैसा प्राइस पे परचेज करो। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट प्लेस भी मैटर करता है आपके मार्केटिंग में। मैन्युफैक्चर, जहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ है प्रोडक्ट का और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाना, इट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और जब तक प्लेस मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। जिसके लिए मेरे पास 2 चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स, डायरेक्ट चैनल एंड डायरेक्ट चैनल। सपोज मैं मुंबई में रहता हूं, मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है आपका दिल्ली में और मैं अपने प्रोडक्ट को बेचता हूं चाइना में, तो कैसे हो पाए? ये मार्केटिंग से हो पाए।
अगर मार्केटिंग टूल्स मेरे पास नहीं हो तो मैं अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया में ही सेल कर पाऊंगा, लेकिन डिजिटली मार्केटिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कहीं भी सेल कर सकते। अब वो दो चैनल के साथ होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड सर। लास्ट स्लाइड प्रमोशन, जिसमें पर्सनल सेलिंग भी आएगा। हम पर्सनली किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में बता करके, इंफॉर्मेशन लेकर के, वही प्रोसीजर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह उससे इन्फॉर्म करके उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। अब देख पा रहे हो मैंने फिगर दिया कैसे यहाँ पर मैग्नेट की तरह नीचे चले आ रहे हैं लोग। मैन्युफैक्चरिंग करना हो रहा और सेल करना हो रहा है। ये पॉसिबल सिर्फ हो पाया मार्केटिंग के थ्रू। अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं होगा। तो आप जान पाए कि अगर मार्केटिंग करना है तो उसके लिए 4 टूल्स इंपॉर्टेंट है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब मैं चाहूंगा कि एक पिक्चर यहाँ आए और एक प्रोडक्ट को आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज किया होगा। उस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपने वो प्रोडक्ट को क्यों परचेज किया, कैसे पता चला उस प्रोडक्ट के बारे में, और आपने डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके उस प्रोडक्ट को परचेज किया। When I call इसमा मैम प्लीज आप आए और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आपने डिजिटल वे से, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके कोई प्रोडक्ट को परचेज कैसे किया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें प्लीज। Good afternoon, everyone. Sir, if you take the slide back to the 4 P's of marketing, I'll be able to explain it properly. 4 P's. Next. Okay. So I'll talk about how the social media apps influence you to buy something. So recently, now I am a bibliophile, someone who reads novels a lot. So I bought a book from Amazon. The book was It Starts With Us of Colin Hoover. Now the book costed me around 500. Now I started getting the ads on Instagram and Facebook and all the social media sites that I use. Now what the site did was that recently Amazon and Flipkart have come up live with the big billion sales. Now what they did was they start sending me ads of 3 combined books of the same author. Now the combined books were the one which I already bought and the other 2 which I planned to buy, and it was in my cart. So obviously they had my database and they made it into an ad selling the book in around 600. Now I already bought a book of 500. Now I'll just tell you how the influence was. The product was already bought. Coming to the price of the book was 500, but the ad that they gave me was of 600 of 3 books. Out of those 3 books, the 1 book was already bought by me, but they made a hamper of 3 books wherein they said that you can buy the book that you have read along with the 2 books and it will cost you less. So that is the kind of promotion. They are promoting the product and they are making me buy the same book twice, giving me offers. Now if I check it properly, the book will cost me 1200 or 1300. If I buy all those 3 books separately, it will again cost me 1300. So now they very properly use the place. The place was social media site. But since I was getting it in offer, I purchased the book. And that is exactly what influence is. So social media sites influence you to buy things that are in your cart and that you plan to buy later. With this ad influence, what they do is they make you buy things that are in the cart, and with the ad they are forced, they compel you to buy those things. So coming back to the 4 P's of marketing. The product they wanted was sold, the price they wanted was I already paid it, the place, the Flipkart, Amazon, whatever social media sites or marketing apps that I was chosen. And then coming to the promotion, they did a very good promotion, giving me hampers,
and offers not that which compelled me to buy those things. So this is how we come the end topic of 4 P's of marketing mix, where apps influence you to buy things that are in your cart that you may require, but the ads are so betterly proven there or so betterly said there that you have to buy it. Thank you. थैंक यू मैम, आपने अपनी बातों को रखा और बहुत ही अच्छे से रखा कि आपको बुक परचेज करना था, आपने प्रमोशन ये वाला साइट से ऑनलाइन विजिट किया, उसके बाद आपको जाना डिस्काउंट में 3 बुक आपने परचेज किया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक मुझे भी बुक शेयर करना है आपके साथ। मुझे शू परचेज करना है, स्पोर्ट्स शू। मैं शॉप में गया, एडिडास के शोरूम में गया और एडिडास को मैंने देखा कि वहाँ पे 20% का डिस्काउंट था और मुझे वो शूज पसंद भी आ गया। मैंने उनका फोटो क्लिक किया, उसके बाद मैं उसी ब्रांड को मैं यूट्यूब में सर्च किया और उसका अनबॉक्सिंग देखा और उसके सारे प्रोसेस थे। कहीं ना कहीं वो सर्चिंग इंजन में आ गया कि मैंने वो सर्च किया है। अब ऑटोमेटिक वो मेरे इंस्टा में और मेरे फेसबुक में उसका ऐड आने लगा कि एडिडास के शू में 30% कभी 40% का डिस्काउंट है। और जब मैं देखा कि जब वही आपका शू जब मैं शॉप से परचेज करता हूँ तो मुझे 20% का डिस्काउंट मिलेगा और बिग बिलियन डे चल रहा है। जब मैं फ्लिपकार्ट में देखा तो उसमें 40% का डिस्काउंट। अब मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू उस शू को 40% के डिस्काउंट पे परचेज करता हूँ और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो नहीं करता, इस मार्केटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, तो मुझे 20% का डिस्काउंट होता जो मैं शॉप जाता और मैं वहां परचेज करता। और इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग और ये सिर्फ सेलिंग होगा। मैंने शू परचेज किया और मेरे घर तक वो शू आ गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग। बट उससे मैंने जो प्रोसीजर के थ्रू समझा ये मार्केटिंग। आई थिंक मैंने मार्केटिंग और सेलिंग को आपको एक अच्छे टाइम से प्रूव किया। नेक्स्ट टाइम सर, ये सारा पार्ट हो चुका है, प्रमोशन वगैरह देख सकते। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हम लोगों की बातों को समझा। हमने बहुत सारे टीचर्स यहाँ है और अपनी बातों को रखा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Sadhu Hassan, for the training on marketing. I'm sure we all have learned a lot. I'd just like to sum up marketing and advertising. If marketing is a V, advertising is one spoon of that V. Marketing entails product development, market research, product distribution, sales strategy, public relations, and customer support. Marketing is necessary in all stages of a business selling journey. Social media channels and teams within their organization to identify their audience, communicate it, amplify it, voice and build brand loyalty over time. On the other hand, advertising is just one component of marketing. It's a strategic effort, usually paid for, to spread awareness of a product or service as a part of the more holistic goals outlined above. Put simply, it's not only the use method by marketers to sell a product. I'll explain it with an example. Let's say a business is rolling out a brand new product and wants to create a campaign promoting that product to its customer base. This company's channels of choice are Facebook, Instagram, Google, and its company website.
It uses all these spaces to support its various campaigns every quarter and generate leads through those campaigns. To broadcast its new product launch, it publishes a downloadable product guide to its website, posts a video on Instagram demonstrating its new product, and invests in a series of sponsored search results on Google, directing traffic to a new product page on its website. Now, which of the above decisions were marketing and which were advertising? Obviously, the advertising took place on Instagram and Google. Instagram generally isn't an advertising channel, but when used for branding, you can develop a base of followers that's primed for a gentle product announcement every now and again. Google was definitely used for advertising in this example. The company paid for space on Google, a program known as PPC, on which to drive traffic to a specific page focused on its product. A classic online ad. Where did the marketing take place? This was a bit of a trick question, as the marketing was the entire process. By aligning Instagram, Google and its own website around a customer-focused initiative, the company ran a 3-part marketing campaign that identified its audience, created a message for that audience, and delivered it across the industry to maximize its impact. The perfect 4 P's of marketing explained by a senior teacher, Mr. Sadhu. Now, what exactly are the types of marketing? Internet marketing inspired by an X13 product campaign that took place online. The very idea of having a presence on the internet for business reason is a type of marketing in and of itself. Search engine optimization, abbreviated as SEO. This is the process of optimizing content on a website so that it appears in search engine results. It's used by marketers to attract people who perform searches that imply they're interested in learning about a particular industry. Blog marketing. Blogs are no longer exclusive to the individual writer. Brands now publish blogs to write about their industry and nurture the interest of potential customers who browse the internet for information. Social media marketing. Business can use Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and similar social networks to create impressions on their audience over time. Print marketing. A newspaper and magazine get better at understanding who subscribes to their print material. Businesses continue to sponsor articles, photography, and similar content in the publications of their customers as they read. Search engine marketing. This type of marketing is a bit different than SEO, which is search engine optimization, which is described just now. Businesses can now pay a search engine to place links on the pages of its index that get high exposure to their audience. It's a concept called pay per click. I'll show you an example of this by video marketing. While there were once just commercials, marketers now put money into creating and publishing all kinds of videos that entertain and educate their customers. I hope this explains you well the types of marketing. Coming to modern marketing, which began in the 1950s, when people started to use more than just print media to endorse a product. As TV and soon the internet entered households, marketers could conduct entire campaigns across multiple platforms. And as you might expect, over the last 70 years, marketers have become increasingly important to fine-tuning
how a business sells a product to customers to optimize success. In fact, the fundamental process of marketing is to attract consumers to your brand through messaging. Ideally, that messaging will be helpful and educational to your target audience so you can convert consumers into leads. Today, there are literally dozens of places one can carry out a marketing campaign, and where exactly one does in the 21st century, obviously in social media's app. So like I explained, the purpose of marketing is to research and analyze your consumers all the time by conducting focus groups, send out surveys and studying online shopping habits, and ask one underlying question: where, when and how does a consumer want to communicate with our business? If you work in a marketing role, this definition will be really helpful about the selling part. For instance, overlaps a little too snugly with a what is sales definition, and the word advertising makes me think of Mad Men brainstorming session. I began seeing that actually marketing does overlap heavily with advertising and sales. Marketing is present in all stages of the business, beginning to end. I hope the conclusion helps you all understanding business strategies and marketing at a better place. Thank you for the session, sir. With this, we end the session. All the teachers who attended the training will collect their certificates from the STMC of our school. Thank you.